Hello friends, I'm Dr. Shitanshu, and as we have discussed a few of the medicines, today we'll be discussing a new one that will be Hippersulf, one of the best remedies in homeopathy mathematics. Friends, I'm trying to make this episode a bit of different from my previous episodes. Today we'll be discussing Hippersulf along with a beautiful case actually. Fight, I told a beautiful case because I enjoyed a lot listening to this patient, and I hope you will also like this case, listening to this case. So when I asked the patient, how can I help you? He told me that, sir, I'm suffering from this much of intense pain in my arm, and also I can't raise my arm up to this much also. So friends, this is kind of similar to the last case I discussed with all of you. It is also a neurological disorder case. So when I asked, how are you suffering, what is about you? So he told me that I am getting severe pain, intense pain, so that even I couldn't sleep last night. Not only last night, but since last 15 or 20 days, I'm feeling so much of pain that I can't have a complete sleep. So that was a kind of very painful condition. Then I asked him, what about any other medications that you have done till now? So he told me that I have visited a lot of neurologists prior to you, and before coming to you, I have been to allopathic doctors, neurologists, orthopedic specialists, and neither of them given me any kind of relief. And I have used so many of painkillers, steroids, and also many injections. I have gone through all those um, medications, but somehow someone told me that I can get kind of I can try with your medicines. So I came to you. Then I asked, tell me anything more than this, any other complaint. So he told me that no sir, it is actually it is paining a lot. That's why I couldn't even do my normal duty activities. Like I couldn't hold anything on my arm or raise a लाठी also. एक लाठी भी मैं अपने हाथ में उठा नहीं सकता. उसके साथ जैसे कि मुझे रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है, अगर उसको भी मैं ठीक से होल्ड कर नहीं पा रहा हूँ या लिख नहीं पा रहा हूँ ज़्यादातर. तो दिस इज काइंड ऑफ so much of pain, and I mean, I couldn't endure such phase, and I have to leave my job. And since last 4 months I have left my job, and I have come to my home here in this village. So I asked him, so any tension or any kind of concerns about regarding about this your disease condition? So he told me, sir, yes, I am in really stress, really tension regarding my family. Though I was anticipating kind of any fearfulness or any anxiety regarding the disorder, but he started narrating his anxiety towards his family and his tensions. So I asked, tell me what about your family tension? He told me that, sir, I am a very much a family man. I have I have done so many of things for my family, and I used to do a lot of things apart from my security job in order to get more of commodities, and the kind of economic status जो है मेरा वो बढ़ाने के लिए I used to do lot of things, and with that
मैं फैमिली में चाहता हूँ कि सब अच्छे से रहे, एंड आई एम ऑल्सो आई लव सो मनी रिलेटिव्स। उसके बाद मैं चाहता था कि मेरा फैमिली अच्छे से रहे, मगर क्या हुआ कि आई एम इन सो मच ऑफ टेंशन सिंस लास्ट 1.5 years। तो मैंने बोला कौन सा टेंशन, क्या है, मुझे बताएंगे थोड़ा। तो ही टोल्ड मी दैट हिज एल्डर सन, वो बताया कि सर, जो मेरा बड़ा बेटा है, एक्चुअली आई एम having two children, three children, two actually boys and one daughter of mine living along with my wife. So my elder son is being married since last 2.5 years, and he's staying with me. He's doing some kind of job also. So he's kind of making so much of disturbance in my family. I am really disgusted to that. मैंने पूछा क्या है, कैसा डिस्टर्बेंस। वो बोले कि नहीं, एक्चुअली सिंस लास्ट 1.5 years he is doing kind of nuisance to my family. He is हर वक्त ये किसी ना किसी, अपने माँ के साथ हो या भाई बहन के साथ हो, वो बहुत इंटेंसली झगड़ा करता रहता है और अशांति फैलाता है। और कभी कभी अपने जो भाई है या बहन है, उनके साथ मारपीट भी करता है। इतना बड़ा होने के बावजूद, शादी होने के बावजूद, he kind of he beats his brother and sister also। और उसके माँ के साथ भी उसका बहुत ही जैसे बड़े झगड़े हर दिन ही होते रहते हैं। तो मैंने पूछा कैसे ये सब हो रहे हैं इतने दिन तक। वो बोला कि नहीं, मुझे मालूम नहीं क्या हो रहा है, मगर मे बी ही इज गेटिंग सम इनपुट्स फ्रॉम हिज इन-लॉज साइड और व्हाट, आई डोंट नो, बट ही इज kind of making so much of disturbance. I'm really in under so much of stress due to that। तो मैंने बोला अगर इतना सारा हो रहा है तो आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। वो बोला कि नहीं सर, एक्चुअली माय रिलेटिव्स आल्सो दे आस्क लाइक दिस। वो बोलते हैं कि भाई तुम्हारे घर में ये सब इतना सब चल रहा है और तुम क्यों बोलते नहीं कुछ। तो मुझको भी ये सुन के थोड़ा खराब लगता है, मगर जो लास्ट 2 years हो गया जब से उनका उसका शादी हो गया है, उसके बाद मैं उसको कभी कुछ बोलता नहीं जनरली। और जो भी हो घर में, जो झगड़ा हो जो भी हो, मैं कुछ बोलता नहीं कि क्यों ये सब। जैसे मैं चाहता नहीं कि मैं कुछ ऐसे माहौल को कुछ खराब करूं, या मैं कुछ उसमें अंदर उसमें जाके मैं फिर झगड़ा स्टार्ट कर दूं। तो मैंने पूछा इतना दिन हो गया, इतना आपको कष्ट हो रहा है, तो व्हाई डोंट यू रिएक्ट। वो बोले कि नहीं, आई कैंट रिएक्ट एक्चुअली, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अभी तो इतना गुस्सा आता है कि अभी 2-3 दिन हो गया मैं सोच रहा हूँ कि नहीं, ये जो मेरा बेटा है उसका एक हाथ या पैर उसको काट के उसको घर में फेंक दूँ। फिर जो होगा देखा जाएगा, फिर बाद में देखेंगे क्या हुआ। तो मैंने एक्चुअली आई वाज लाइक astonished टू hear such a thing from a father about his son। तो मैंने पूछा क्या बोले क्या बोले। तो बोला कि नहीं सर, इतना टेंशन हो रहा है, अभी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अभी इसका एक हाथ हो या पैर हो, मैं फिर पूरा एकदम काट के उसको घर में फिर एक कोने में उसको डाल दूंगा, फिर जो होगा देखा जाएगा। तो इट वाज लाइक suddenly abruptly he said such a thing after narrating his जो उसका जो सहन जो चरित्र है उसको बताने के बाद ये सडनली जो ये गुस्सा वाला जो चीज़ बोला, आई वॉज रियली एस्टोनिस्ड। तो उसके बाद मैंने बोला कि ठीक है, इतना ही बोलो, ज़्यादा मैं जैसे केस को और बढ़ाया नहीं। एंड आई प्रेस्क्राइब्ड ए सिंगल डोज ऑफ हिपरशल 30। आफ्टर फ्यू days, 3 days, 2 to 3 days, he visited again to my outdoor, and he told me that he's not having any kind of pain. A little bit of discomfort is there, and he can hold his arm up to a certain height now. So he can sleep also. Now he can sleep
freely in night. तो ये जो 2 दिन में इतना सब हो गया, और पहले जो बोला था कि नहीं इतना इंजेक्शन, इतना मेडिसिन, इतना न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाने के बाद कुछ ही नहीं हो रहा है, तो he could get such a wonderful result within 2 days. And that too, after 2 months he didn't visit my clinic. मगर मैं उसका जो बेटा है उसको फिर पूछा कि कैसा है तुम्हारा बाप, तो मैंने फ़ोन भी लगाया उसको, तो एंड ही इज़ डूइंग वेरी वेल। वो भुवनेश्वर में आके फिर उसका जो सिक्योरिटी जॉब है वो भी कंटिन्यू कर रहा है, और उसका हाथ का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बताए। तो वो केस कम्प्लीटली क्योर हो सका है ये हिपरसल 30 के एक डोज के बाद। तो द मेन थिंग वी शुड लर्न फ्रॉम दिस केस इज the repulsiveness, the anger that the hypershelf patient has, it is immense actually. तो उसका जो एंगर है इतना बढ़ जाता है, मगर वो उसको जैसे बता नहीं पा रहा है या उसको जैसे रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो इट इज़ लाइक देयर इज ए रूब्रिक फॉर रैपिंग अप इन समर इन। तो उसमें क्या होता है कि जब देखिए, जब इवन समर में या गर्मी में जब उसको इतना गर्म है, तब भी वो जैसे कोई मोटा वाला कोई चीज़ वो ढांकने लगता है, तो अंदर जो गर्मी है वो उसको बढ़ाता रहता है। तो लाइक दिस, तो उनका एंगर इतना ज़्यादा होने के बावजूद वो इसको रिएक्ट नहीं करता है, उसको सप्रेस करके रखता है, तो एंगर अपने अंदर वो बढ़ता जा रहा है, तो गर्मी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, मगर उसको ये ढांक के रखता है। तो वही चीज़ हिपरसल का सबसे जो बड़ा चीज़ है इसी केस में मुझे मिला। उसके बाद उसका जो कावर्डियसनेस है, उसका जो फियर ऑफ बीइंग मर्डर्ड, उसको डर भी लगता है कि मेरा क्या कुछ हो जाए, या मैं फियर ऑफ बीइंग डिसफिगर्ड भी है हिपरसल में। तो उसको लगता है अगर कुछ मैं बोलूँ या कुछ करूँ, मेरा जो फैमिली में जो मेरा जो फिगर है, मैं जो चीफ हूँ या मेन जो लोग हूँ घर में, मेरा अगर फिगर घर में अच्छा ना रहे, मेरा जो वैल्यू है वो बदल ना जाए या ख़राब ना हो जाए, इसके लिए वो रिएक्ट नहीं कर रहा है। और दूसरा एक चीज़ है कि उसका जो एंगर, जो रेज है इतना बढ़ जाता है, जिससे उसको लगता है कहीं मैं कुछ किसको स्टाब ना कर दूं, किसको नाइफ में मैं स्टाब ना कर दूं। देयर इज ए रूब्रिक लाइक दिस इन सिंथेसिस रिपर्टरी। एंड ऑल्सो ही फील्स लाइक ही कुड वो जो फायर कहीं लगा देगा, अगर इतना उसको परेशानी, इतना जैसे एंगर हो जाता है, तो उसको सोचता है कि नहीं ये फायर में लगा दूं फिर यहाँ पे, या मैं काट के फिर रख दूं। ये जैसे ये पेशेंट बोला कि नहीं उसको काट के मैं फेंक दूं। तो दिस काइंड ऑफ एंगर, दिस काइंड ऑफ जो इंटेंसिटी रहता है, मगर उसका जो कावर्डियसनेस है, इसीलिए वो अपने जो एंगर को प्रकाश नहीं कर पा रहा है, बता नहीं पा रहा है। तो फिर लास्ट में जाके उसको इतना ज़्यादा हो जाता है कि ही कैन डिस्ट्रॉय द थिंग्स। डिस्ट्रॉय नहीं, ये पूरा एकदम ब्रूटलिटी जो बोलते हैं ना, क्रूएल्टी, वो भी आ जाते हैं उसके अंदर। तो कई सारे जैसे दूसरे लोग जानने चाहेंगे कि देखिए नॉक्स भूमि का भी ऐसे एंगर होता है, उसका भी जो अंदर का जो इंटेंसिटी ऑफ एंगर, जो रेज है इतना ज़्यादा होता है। मगर देखिए नॉक्स भूमि ऐसा एक बंदा है जो रिएक्ट करेगा, डेफिनेटली ही कैन रिएक्ट टू एक्सटेंड, नॉट एक्सटेंड, वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्ट करेगा। और एक चीज़ जानिए कि नॉक्सपम उसका जो डिक्टेटोरियल जो नेचर है वो भी रहेगा। देखिए ये जो हिपरसल का पेशेंट है, ही इज़ क्वाइट, जैसे उसके फैमिली के बारे में उसको एंजाइटी है, उसके रिलेटिव्स के बारे में भी उसका जो केयरिंग है, सब कुछ है, और जो मोरल जो है चीज़ वो भी है इसके अंदर। मगर उसका जो रिएक्ट करने का चीज़ नहीं है, जो कि नॉक्सपम में कूट कूट के भरा है नॉक्स में। थिंग अबाउट हिपरसल, जैसे देखेंगे कोई जैसे फिजिकल सिम्टम्स हो, जैसे हम ज़्यादातर पेनफुल कंडीशन हो, या जैसे नाखून में कोई हुइटलो हुआ, या कुछ एब्सेस हुआ, कोई पस फॉर्मेशन हुआ, तो हम क्या करते हैं, ये बहुत ही अगर पेन करता है, हमको लगता है कि ये इतना पेन करता है उसको काट के फेंक दूं शायद। मगर इतना जो इन्फ्लामेशन इतना ज़्यादा है कि हम
टच नहीं कर पा रहे हैं। तो ये केस अगर जानेंगे कि ये अगर आप एक फैमिली को अपने जैसे बॉडी अगर उसको समझेंगे, तो वहाँ पे अगर जैसे मेरे बड़ा बड़ा बेटा हुआ या ये हाथ हुआ, तो ये हाथ में अगर ये सारा इन्फ्लेम्ड है या पॉस हो गया है या एब्सेस हो गया है, तो ये एरिया अगर गंदा हो गया है, जैसे उसका बड़ा बेटा जैसे गंदा हो गया है, तो अगर ये हाथ गंदा हो गया है तो इसको मैं छू भी नहीं पा रहा हूँ, इतना इन्फ्लेम्ड इतना गंदा है, मैं छू नहीं पा रहा हूँ। जैसे उसका बेटा इतना खराब काम कर रहा है, इतना उसको जो एंग्विश जो पेन हो रहा है, मगर ये ऐसे ही ये हाथ को छू नहीं पा रहा है। जैसे वो बंदा जो अपने बड़े बेटा जो है उसको कुछ बोल ही नहीं पा रहा है, मगर मन में क्या है कि नहीं ये हाथ इतना पेन कर रहा है, उसको काट के फेंक देता हूँ। तो वही यही केस में क्या हुआ, वो बंदा वो सोचता है कि नहीं वो बेटा को मैं काट के फेंक दूं घर में, मगर ये कर नहीं पा रहा है। क्यों कर नहीं पा रहा है? क्योंकि उसका जो जो फियर ऑफ बीइंग डिसफिगर्ड है। क्योंकि अगर ये मेरा जो बॉडी है इसमें से ये हाथ को काट दूं, कैसे काट दूं? ये तो मेरा पार्ट है ना, ये बॉडी का एक पार्ट है, तो मैं तो ये अपने आप को डिसफिगर नहीं कर सकता, उसका डर रहता है। और ये जो है बंदा ये क्या किया कि वो मन कर रहा है कि उसको काट के फेंक दूं, मगर ये छू नहीं पा रहा है। ये कैसे काट दे? ये अपना बड़ा बेटा है तो उसको तो काट के फेंक नहीं सकता ना। अगर ठीक से हम जानेंगे तो ये तो काट के नहीं फेंक सकता है, अपना बड़ा बेटा है घर का। तो इसी तरह का है। तो अगर आप ये बात को समझ लेंगे हिपरसेल्फ में, तो आप कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है जो हिपरसेल्फ को आपको जानना पड़ेगा, जो रूब्रिक्स अभी मैं यहाँ पे डाल दूंगा, ये देखेंगे तो यही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे जो रिपल्सिव मूड रिपल्सिव होता है, जो एंगर रेज जो होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। जिसे इतना एंगर होता है कि लाइक ही वांट टू स्टैब नाइफ, ही वांट टू सेट फायर, तो ये सब चीज़ उसके मन में आ जाता है। उसके बावजूद उसका जो एंजाइटी फॉर फैमिली वो बहुत ज़्यादा है। इसके साथ उसका जो केयरिंग है फॉर रिलेटिव्स, एंजाइटी फॉर उसके जो दूसरों के लिए जो चिंता है वो भी रहता है। तो ही इज़ काइंड ऑफ ए सोशल एंड फैमिली मैन। बट ये मुझे लगता है कि जैसे आई एंजॉयड ए लॉट लिसनिंग टू दिस केस, तो आपको भी ये केस सुन के और हिपर सेल्फ को रियली जान के आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड कीप प्रेसिंग द लाइक बटन and also notification button, so that I could bring a beautiful medicine, beautiful case in the next episode. Thank you so much for watching. Bye.